Good afternoon. Please have a seat. Okay, thank you. So first of all, introduce yourself. My name is Arvind Kumari. Basically, I'm from Himachal Pradesh. Apart from me, there are 4 members in my family. About my qualification, I have done my schooling from HP Board Dharamshala, and after that, my MPhil, my master, I have done from HP Shimla. Apart from this, my hobbies are playing chess and traveling. And I have also 1.5 year teaching experience as a PGT economics. Okay. And what do you think that what is the best way to teach the Okay. The best way of teaching to kids that we can relate themselves with their daily life. Whatever they are doing, they are challenging, they are facing in daily life. We have to correlate that with their theoretical. Okay, but if you are talking about like a particular economic subject, so how can you best like this? I think economics is in our daily life routine. Okay. Whatever we are doing, first of all, whenever we are getting up, we are purchasing the milk. That is also economic activities. After that, we are going to our office or school. That is also economic activity because we are paying the fare. So do you want to engage them in daily examples also? Yes, I will. Okay. How you prepared with your demo? Yes, sir. So what are you going to teach us today? Yes. Indifference curve, sir. Indifference curve. Yes, sir. Okay, please tell. Thank you, sir. First of all, may I consider this as a classroom? Yes, please. You can. Thank you, sir. Okay. Good evening to all of you. How are you, Bacha? All fine? Good. Okay. Feeling so tired. Yes, Bache. Sia, what happened? You are looking so tired. Rahul, you too. What happened? Okay. चलो आज हम रिया और राहुल को चीयर अप करेंगे. हाउ? एक वर्चुअल पार्टी हो जाए आज. ठीक है? कैसे करेंगे वर्चुअल पार्टी? ऐसा करते हैं रिया बेटा. ओके. You have 2 options. One is chocolate and second is biscuits. Which thing do you like the most? Chocolate. Okay, Riya likes chocolates. And Rahul बच्चे you? Okay, biscuits. Rahul likes biscuit. देखो कैसे खुश हो गए. बिल्कुल बच्चे तो फ्रेश हो गए. Okay, just hypothetical. Suppose chocolates. You have 5 pieces of chocolates, Riya, and 3 pieces of biscuits. But as Riya told us, she don't like biscuits as much as she likes chocolates. Okay, and Rahul likes what? Yes, Rahul likes biscuit. ठीक. तो Rahul asked to Riya, I will give you 5 biscuits. Okay, you will give me 5 biscuits. After that, I will give you 1 chocolate. Riya agreed. Why? Because she likes chocolates more than biscuits. तो राहुल ने क्या किया कि रिया के लिए क्या है 10 बिस्किट्स रिया से लेंगे और उसके लिए उसको क्या दे दी 1 चॉकलेट. नाउ रिया हैज 2 चॉकलेट्स. तो रिया के पास 2 चॉकलेट्स हो गई और 10 बिस्किट्स. ये कॉम्बिनेशन है कि रिया के पास क्या है या तो 15 बिस्किट्स है 1 चॉकलेट्स अदरवाइज 10 बिस्किट्स और 2 चॉकलेट्स. तो अब क्या है राहुल आस्क अगेन कि रिया क्या तुम मुझे और ज्यादा चॉकलेट मैं तुम्हें और चॉकलेट्स दूंगा और क्या तुम मुझे और बिस्किट्स दे सकती हो एज सेम कि 5 बिस्किट्स तू. रिया सेड नो. व्हाई? क्यों? क्योंकि लास्ट चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट दिस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इज देयर एनीवन हु कैन एक्सप्लेन इट? ओके, नाइस. यस. क्या है जब किसी चीज का कंजम्पशन हम इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए क्या होती जाती है डिमिनिश होती जाती है. जस्ट हाइपोथेटिकल सपोज रिया क्या है चॉकलेट बहुत पसंद है. जब उसने फर्स्ट चॉकलेट कंज्यूम की तो शी वाज एंजॉयिंग बट सेकंड में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन हो गया. थर्ड में उसे क्या लगा कि ठीक है मैं चॉकलेट लाइक करती हूँ. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 5 बिस्किट्स के लिए ये दूं. तो राहुल कैसे कन्विंस करता है उसको ठीक है 3 बिस्किट्स के बदले चॉकलेट्स. तो सेम थिंग्स विल हैपन 7 and 3 and so on. तो क्या है इकोनॉमिक्स में क्या होता है जो ये चीज है कि हम क्या कर रहे हैं किसी एक गुड्स को फॉर एग्जांपल बिस्किट्स के लिए चॉकलेट्स का कितना पार्ट हम सैक्रिफाई कर रहे हैं
इस चीज को हम एक कर्व के थ्रू शो करते हैं, उसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, जिसमें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करेंगे किसके, टू गुड्स के। तो आवर टुडेस टॉपिक इज इंडिफरेंस कर्व। राइट डाउन, टुडे टॉपिक इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व। अब जैसे कि आपको नेम से सजेस्ट हो रहा है कि ये कोई क्या होगी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, आफ्टर दैट वी विल एक्सप्लेन इट। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व इट इज अ combination of how many goods, two goods. Okay, we are taking two goods, it is a combination of two goods। और हमने two goods कौन कौन सी ली है बच्चे, chocolates and biscuits। it is a combination of two goods that a consumer consume and get equal level of satisfaction, equal level of satisfaction। अब आप लोग पूछोगे कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से क्या है मतलब मैम का, तो ओके आई विल एक्सप्लेन। इक्वल मीन्स कि अगर उसे 1 चॉकलेट्स एंड 15 बिस्किट्स को कंज्यूम करने से जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, अगर उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन ए, अगर उसके पास कौन सा ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अगर उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता, कॉम्बिनेशन ए नहीं होता, तो अगर कॉम्बिनेशन बी को ऑप्ट करती तो शी विल गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना उसे 15 बिस्किट और 1 चॉकलेट को कंज्यूम करने से होगा, वही सेटिस्फेक्शन उसको 10 बिस्किट्स एंड 2 चॉकलेट्स। अगर सपोज करो उसके पास ये वाला ऑप्शन की बजाय वो इस ऑप्शन को चूज करती, तब भी उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है, जिसमें कंज्यूमर जो भी चीजें कंज्यूम करता है उससे उसे क्या मिलती है, हर पॉइंट पे, हर कॉम्बिनेशन पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, तो इसको हम एक डायग्रामेटिकली मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। ओके, द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे भी हम क्या लेंगे, चॉकलेट, एंड इन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग बिस्किट। और अब इस डायग्राम को आप लोग खुद अपनी नोटबुक पे बनाओगे मैप बोर्ड पे, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, हाउ टू portrait this graph, because you have already learned about it in your previous classes as well as previous chapter. Okay, so I am dividing it in 1 2 3 4 and 5, and here it is 2 4 6 8 10 12 14 and 16. Whenever you will join all of these points, you will get a curve like this. This will call indifference curve. तो इस कर्व पे क्या है, इस कर्व पे जो क्या है, आप इस कर्व को देख रहे होंगे बच्चे, क्या है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेगेटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इकोनॉमिक्स में सिंपल दो रिलेशन होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, आपके पास 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ऑलवेज 2 वेरिएबल कंसीडर किए जाते हैं। तो क्या है, जब आपकी कोई चीज एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और सेकंड वेरिएबल इज डिक्रीजिंग, that will be negative relation. For example, if your price is increasing, your demand is decreasing, that is negative relation. And same thing will be happen in positive relation, that will be go in same way. If one variable is increasing, second is also increasing, or if one variable is decreased, other is also decreased. तो यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक वेरिएबल, ठीक है, चॉकलेट्स के लिए, ठीक है, for getting one more unit of chocolate, we are sacrificing 5 units of biscuits। इसका क्या मतलब कि नेगेटिव रिलेशन है, बिकॉज एक को इंक्रीज कर रहे हैं दूसरे को हम डिक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से क्या है, स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, फर्स्ट रीजन नेगेटिव स्लोप। और ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, तो एग्जाम में आएगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो गई, इट इज अ नेगेटिव स्लोप
कर्व, ठीक है, ये क्या है, ये नेगेटिव स्लोप है। सेकंड थिंग इज इट इज अ कन्वेक्स, और क्या है, कन्वेक्स टू ओरिजिन, ये ओरिजिन के लिए कन्वेक्स है। इसका रीजन क्या होगा, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या आ गई बच्चे, कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। ये चीज आपने पीपीसी में भी पढ़ी है, बट स्टिल फिर भी बताएगा कोई बच्चा कि क्यों हुआ ऐसा। पीपीसी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ये क्यों कन्वेक्स है, इसके कन्वेक्स होने का सिंपल रीजन यही है, इट इज द रीजन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो या आप चेंज कर रहे हो, क्या बिस्किट की जगह पे चॉकलेट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो जब ये चीज होती है नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव मींस ये डिक्रीज हो रही है, देखिए यहाँ -5, यहाँ पे -3, मैंने और नहीं लिया वैसे। तो ये क्या हो रहा है, पहले आपने 5, ठीक है, 5 यूनिट्स का 3 यूनिट्स, सो ऑन ऐसे जब होगा तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रही है, क्या चीज, जब आप इस चीज को एक की जगह दूसरी चीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो स्लोप है वो कन्वेक्स होता है, किसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ। तो दिस वन इज अ कन्वेक्स टू ओरिजिन, दीज आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वी आर टेकिंग इंटरव्यू सिंस मॉर्निंग, सो 275 कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर दिस पोजीशन, राइट। पोजीशन एक है, 275 इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुके हैं। पढ़ाते हैं, जैसे आप पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो, तो बहुत सारे लोग हैं, सारे अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या है, हम दुविधा में, वी आर इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, हु शुड वी चूज। तो अब ऑब्वियसली सिंस पोजीशन हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम सारे तो हायर नहीं कर सकते। So if I have to ask you, why should we hire you? Just tell us in 25 seconds, why should we? I know maybe the students who has come here to giving the interview, they are better for me. They are not. I'm not comparing myself with others. I'm just want to say that my previous experience and my certification also suits to this job. And and also my previous record proven that my students are already show that they are continuously upgrading their scores. And all of they are succeeding to next level, and I will also give the same feedback, same positive impact in KVS if I got hired. Okay, all right. I'm done. You can Okay. okay. Thank you. Thank you.